1947 میں مسلمانان دلی پر ڈھائے جانے والے مظالم کی چشمدید روداد ڈاکٹر عبارت بریلوی کی زبانی 18 اگست 1947 کو ہندو کالج کے پروفیسر اور میرے دیرینہ دوست راجندر ناتھ شیدہ مجھ سے ملنے اور حال احوال معلوم کرنے اربک کالج میں آئے اور دیر تک اپنے مخصوص انداز میں باتیں کرتے اور مشورے دیتے رہے۔ ریڈیو ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ 5 بجے کے قریب ریڈیو پر اعلان کیا گیا کہ دلی کی فضا خراب ہے، اس لیے شہر میں 72 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا گیا۔ دلی کی انتظامیہ ان دنوں مفلوج ہو چکی تھی۔ حکومت نے صاحبزادہ خورشید احمد خان کو دلی کا چیف کمشنر بنا رکھا تھا، لیکن وہ بہت کمزور آدمی ثابت ہوئے۔ وہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ انتظامیہ کی قوت کا سرچشمہ ڈپٹی کمشنر رنتاوا تھا۔ اس کی شہرت پہلے بہت اچھی تھی اور تعصب اس میں نام کو نہ تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بالکل بدل گیا اور اس نے شرپسندوں کی سرپرستی شروع کر دی۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ اس کے بعض عزیز مغربی پنجاب کے ہنگاموں میں مارے گئے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اس کا بدلہ دلی کے مسلمانوں سے لینے لگا۔ اس تعصب نے دلی کی سرزمین پر خون کے دریا بہا دیے۔ اب دلی میں مسلمانوں کا باقاعدہ قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ حملہ آور ہندو مہاسبھا اور جین سنگھ کے بارودی سپاہی اور اکالی دل کے جنگجو سکھ تھے جو خودکار ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ مختلف محلوں میں خوف و ہراس پھیلا کر مسلمانوں کو گھروں سے باہر نکالنے اور انہیں موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ ان لوگوں نے ایک منصوبے کے تحت دلی کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ ریلوے اسٹیشن اور ہوائی اڈے کو مقتل بنا دیا گیا تھا۔ جو مسلمان بھی وہاں گیا اسے قتل کر دیا گیا۔ ریل گاڑیوں میں لاشوں کے انبار ہوتے اور خون ہی خون نظر آتا۔ ہندو انتہا پسندوں نے پولیس اور فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے محلوں پر حملوں کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ جن محلوں میں مسلمان کم تھے وہ بیچارے پہلے ہی اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی تلاش میں چلے گئے تھے، لیکن جہاں وہ اکثریت میں تھے وہاں ان پہ رات گئے حملے کا سلسلہ جاری رہتا۔ مسلمان اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے، ان پر ہر طرف سے گولیوں کی بچھاڑ ہوتی۔ اس طرح نہتے مسلمان قتل ہوتے رہے۔ صبح اخبارات میں معمولی سی یہ خبر شائع ہو جاتی تھی کہ شہر میں صرف ایک واردات ہوئی اور اس کے ذمہ دار مسلمان تھے۔ سب سے پہلے کرول باغ میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری شروع ہوئی۔ یہ علاقہ شہر کے باہر تھا۔ مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی تھی۔ مسلمانوں کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے۔ ان مکانوں پر حملے ہوئے، سامان لوٹ لیا گیا اور بے شمار مسلمان یہاں قتل ہوئے۔ کرول باغ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم تھا، جس کے ساتھ بہت بڑا مکتبہ اور لائبریری تھی۔ جامعہ کے لوگ بیشتر قوم پرست تھے اور کانگریس کا دم پڑتے تھے، لیکن انہیں بھی نہیں بخشا گیا اور لائبریری کو آگ لگا دی گئی۔ ایک اسکول میں امتحان ہو رہا تھا جہاں مسلمان بچوں کو ایک کمرے میں جمع کر کے قتل کر دیا گیا۔ پھر لودھی کالونی کی باری آ گئی۔ مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لی گئی اور ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے مکانوں میں اسلحہ جمع کر رکھا ہے۔ اس آبادی میں زیادہ تر سرکاری ملازمین رہتے تھے، ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا؟ کسی کے گھر سے ترکاری کاٹنے والی چھری، کھرپا یا پھوڑا برآمد ہوا تو ان چیزوں کو اسلحہ تصور کیا گیا اور اسی بنا پر پولیس کے سپاہی گولیاں چلاتے رہے اور سکھ کرپانے اور تلواریں لے کر آ گئے۔ انہوں نے نہتے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور آبادی کے بیشتر لوگ مقابلے میں کام آئے۔ اگلے روز خبر آئی کہ سبزی منڈی میں کمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ یہاں آباد مسلمان اچھے دولت مند تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، اس لیے جب ان پر حملے شروع ہوئے تو انہوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے مورچے بنا لیے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن جب ان کے مقابل فوج آ گئی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، وہ پسپا ہو گئے اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہاں بھی مسلمانوں کا بری طرح قتل عام ہوا اور عورتوں کی زبردست بے حرمتی ہوئی۔ 2-3 دنوں کی اس مارکہ آرائی میں اس آبادی میں مسلمانوں کا نام بھی باقی نہ رہا۔ شرنارتھی ان کے مکانوں میں داخل ہو گئے، مال و اسباب پر قبضہ کیا اور اپنی آبادکاری کی اسکیم مکمل کر ڈالی۔ اب پہاڑ گنج کی بھاری بھرکم مسلم آبادی میں قتل و غارت شروع ہوئی۔ یہاں بھی خاصے متمول مسلمان رہتے تھے۔ انہوں نے بڑی دلیری اور جیداری سے مقامی ہندوؤں اور سکھوں کا مقابلہ کیا، لیکن
जब यहाँ भी पुलिस और फौजी जदीद असले के साथ आ गई तो पहाड़गंज की सड़कों पर भी मुसलमानों का खून बहने लगा। बेशुमार मुसलमान यहाँ मारे गए, औरतें बड़ी तादाद में अगवा हो गईं, सैकड़ों खानदान तबाह बर्बाद हो गए। हिंदू गुंडों ने घरों का सामान लूट लिया, भगदड़ मच गई। जो घर से बाहर निकलकर भागा वो रास्ते ही में मारा गया। किसी के हाथ काटकर उसे तड़पता छोड़ दिया गया, किसी के पांव काट दिए गए, किसी का सर तन से जुदा कर दिया गया। लाशें कई दिन तक सड़ती रहीं, हवा के साथ उनकी बू एंग्लो अरब कॉलेज तक आती रही और हम लोग यहाँ दुबके हुए अपनी मौत का इंतजार करते रहे। दिल्ली के दूसरे मोहल्लों में भी कमोबेश यही हाल हुआ। कई दिनों तक जगह जगह हमले होते रहे और मुसलमानों का कत्ले-आम होता रहा, जो तकरीबन 3 हफ्ते जारी रहा। मुसलमानों पर ऐसे ऐसे मजालिम ढाए गए जो चश्मे फलक ने उससे कबल कभी नहीं देखे थे। बिलाशुबा इंसानी तारीख में ऐसी सफाकी का मुजाहरा शायद ही कभी हुआ हो। दिल्ली तबाह हो गई और उस शहर बेमिसाल के अंदर और बाहर एक कलसम खून मौज जन नजर आने लगा। हमारा कॉलेज अभी तक जालिमों की दस्तबर्द से महफूज था, लेकिन उसके आसपास खून के समुंदर मौजूद थे। हर वक्त गोलियों की आवाजें आती रहती थीं। महसूस होता था कि वो एक दिन में ये गोलियां हमारे सीनों पर चलेंगी। इन दिनों एक उल्लू कॉलेज के ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर रात भर बोला करता था और उसकी तेज आवाज हमारे सीनों में कटार बनकर उतरती थी। इस परेशान कुन फिजा में हमने कई दिन शदीद करब के आलम में गुजारे। आखिरकार 7 सितंबर को जब कॉलेज के इर्द गिर्द भी गोलियों की आवाजें आने लगीं तो हम लोगों ने इनखला का फैसला कर लिया और पाकिस्तान हाई कमीशन से इमदाद के लिए राब्ता कायम किया। उस जमाने में सैयद जाहिद हुसैन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे। उन्होंने बड़ा करम फरमाया और 3 बड़ी गाड़ियां हमें हाई कमीशन ले जाने के लिए भिजवा दी, जबकि 2 गाड़ियां हमारे पास पहले ही से मौजूद थीं। हम लोगों ने एक एक सूटकेस अपने साथ लिया और बाकी चीजें वही छोड़ दी। ख्याल था कि चंद रोज बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे, लेकिन ए बसाए आरज़ू के खाका शुदा दिल्ली में क़यामत बर्पा थी और हिंदू फिरका परस्तों का मंसूबा था कि वो कॉलेज पर कब्जा कर लेंगे, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, सामान जला देंगे और कॉलेज शरणार्थियों का कैंप बन जाएगा या फिर लाहौर के किसी हिंदू कॉलेज को अलाट कर दिया जाएगा। हम ये सोच सोच कर सख्त परेशान थे कि मुसलमानों का ये तारीखी कॉलेज अब उन्हें कभी वापस न मिल सकेगा। उसकी संगे सुर्ख की खूबसूरत मस्जिद मंदिर में तब्दील कर दी जाएगी। मस्जिद के बराबर बानिए कॉलेज नवाब एतमाद उद्दौला का मकबरा खोद डाला जाएगा। वो कमरे जिनमें कभी हाली नजीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद रहा करते थे, उनमें जटाधारी पिंडत बसेरा लेने लगेंगे। कॉलेज में आइंदा सिर्फ हिंदू और सिख तालिब इल्म तालीम हासिल करेंगे और मुसलमानों का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। मैंने कॉलेज हॉस्टल के हेड बावर्ची उस्ताद सिब्ती से कहा कि तुम्हारे पास राशन का जो भी सामान है वो भी गाड़ियों में रख लो, खुदा जाने कब और किस हाल में उसकी जरूरत पड़ जाए। चुनांचे सिब्ती ने कॉलेज के मुलाजमीन में यासीन, हसन और शेर खान की मदद से ये सारा सामान गंदम, चावल और शक्कर वगैरह गाड़ियों में रख लिया, जो बाद में हमारे बहुत काम आया। पाकिस्तान हाई कमीशन का रास्ता कुछ कम पुरखतर न था। जगह जगह हिंदू और सिख शरपसंद और फौजी पोजीशनें संभाले हुए बैठे थे। उन लोगों ने हमारी गाड़ियों पर भी फायरिंग की, लेकिन निशाने ठीक न लगे और हम बखैरियत पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंच गए। पाकिस्तान हाई कमीशन पर क़यामत का समा था। लुटे पुटे और परेशान हाल मुसलमानों का वो हजूम के तल धरने को जगह न थी। ऐसे में डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। पूछा, आप पर क्या गुजरी? आप तो यूनिवर्सिटी में थे, जो बज़ाहिर महफूज जगह थी। फरमाने लगे, ख्याल तो हमारा भी यही था कि यहाँ कोई हंगामा नहीं होगा, लेकिन अलस सुबह हमारे घरों पर हमला हो गया। हैरत ये देखकर हुई कि वो हिंदू और सिख लड़के भी उसमें शरीक थे जो हमारे शागिर्द थे, लेकिन वो अब हम लोगों पर गोलियों की बौछार कर रहे थे और लूट मार कर रहे थे। उन लोगों ने हमें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दी और हम सब अपने घरों को छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए। गनीमत है कि हमारी जानें बच गईं, वरना उस माहौल में सब कुछ हो सकता था। पाकिस्तान हाई कमीशन में हम सिर्फ 24 घंटे ठहरे। इस दौरान मालूम हुआ कि पुराने किले में लुटे पुटे मुसलमानों के लिए फौजी कैंप खोल दिया गया है।
पाकिस्तानी हाई कमीशन नवाबजादा लियाकत अली खान की कोठी गुल्ले रहना में कायम किया गया था। नवाबजादा साहब ने पाकिस्तान जाने से कबल हुकूमत हिंद से यह तय करवा लिया था कि उसमें हमेशा पाकिस्तान हाई कमीशन का दफ्तर कायम रहेगा। ये नवाबजादा साहब का इशार था और उसके एवज उन्होंने पाकिस्तान से कुछ हासिल नहीं किया। हमने सैयद जाहिद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान हाई कमीशन को अलविदा कहा और पुराने किले रवाना हो गए। वहां पहुंचे तो मगरिब का वक्त था। किले में हजारों लुटे पुटे खानदान आ गए थे। ये किला क्या था? अच्छा खासा खंडर था जिसके मीलों फैले हुए रकबे को सदियों पुराने पत्थरों की ऊंची ऊंची फसीलों ने घेर रखा था। अंदर सिवाय अमाइयों के कुतुब खाने और शेर शाह की तामीर करदा मस्जिद के कोई काबिल जिक्र इमारत नहीं रह गई थी। किले में जगह जगह खारदार झाड़ियां और पपोल के दरख्त थे या फिर खुदरो घास थी। नाम नेहाद आज़ादी हिंद के बाद जिन सिंह के हिंदू शरपसंदों और अकाली दिल के जालिम सिखों ने दिल्ली में हजारों मुसलमानों को कत्ल किया, हजारों को जख्मी और अब लाखों बेसरो सामान इंसानों को उस किले के अंदर धकेल दिया था, जहां सर छुपाने के लिए कोई छत थी, न बारिश और धूप से बचने के लिए कोई और सूरत। साया दीवार तक उनके नसीब में नहीं था। एंग्लो अरबिक कॉलेज के प्रोफेसर, तालिब इल्म और मुलाजमीन वगैरह सब मिलाकर कोई 50-60 आदमी थे। हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हमें पुराने किले का चक्कर लगाना चाहिए। चुनांचे हम लोग अपने मिशन पर निकले। हम एक एक खानदान के पास गए, उनकी बप्ता सुनी, जिसको सुनकर हमारे सीने शक हो गए। हमने लोगों से कहा कि अब आपको कुछ अरसे यही रहना है, जब पाकिस्तान और भारत की हुकूमतें बाहम फैसला करेंगे तब आप लोग पाकिस्तान जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप दरख्तों की शाखें काट लें और उन्हें जमीन में गाड़ कर चादरें तान लें ताकि रात की शबनम और दिन की धूप से कुछ तो महफूज रहें। हमारे मशवरे का ये असर हुआ कि थोड़ी देर में लोगों ने दरख्तों की शाखें काम डाली और उन्हें जमीन में गाड़ कर चादरें या औरतों के लिए दुपट्टे तान लिए। यहाँ बड़ी सख्त बेआरामी थी, लेकिन ये इत्मीनान जरूर था कि अब यहाँ हिंदुओं और सिखों के उन पर हमले नहीं होंगे, क्योंकि बलोच रेजिमेंट के मुसल्लह जवानों ने कैंप की हिफाजत का काम संभाल लिया था। बहरहाल ये रात क़यामत की रात थी। लाखों आदमी आलम कसम परस्ती में किले के अंदर और बाहर पड़े थे। यहाँ खाने के लिए कोई चीज थी, ना पीने के लिए पानी। किले के बाहर सड़क के किनारे सिर्फ एक नल था, जिससे लोग लंबी लंबी कतारों में पानी लेने के लिए खड़े थे। ये नल उस वक्त लगाया गया था जब दूसरी जंग अजीम के जापानी कैदी यहाँ रखे गए थे। इस मंजर ने करबला की याद जिंदा कर दी थी। किसी को पानी मिला, किसी को ना मिला। कैंप में मर्दों और औरतों के अलावा बच्चे भी मौजूद थे। ये बेचारे भूख और प्यास के मारे रोते और चिल्लाते थे, लेकिन उनकी आहोजारी का कोई इलाज न था। जहाँ पानी ना मिलता हो वहाँ दूध कहाँ, गर्ज किले में हशर का समा था। अहले किला पर ये मुसीबतें तो थी ही कि रात गए बारिश होने लगी, और बारिश भी ऐसी मूसलाधार के जल थल एक हो गए। वो चादरें और औरतों के दुपट्टे जो उन्होंने शबनम और धूप से बचने के लिए टांग लिए थे, वो सब के सब बारिश के पानी में बह गए। किले के वसीओ अरीज सैन में पानी जमा हो गया। ये बारिश आसमानी आफत थी। आखिर चंद घंटों के बाद बहुक्म इलाही खुद ही बंद हो गई। रात भर की बारिश का ये असर हुआ कि भीगने से लोग नज़ला जुकाम और बुखार में मुब्तला हो गए, और फिर सांप निकलने लगे। किस्म किस्म के सांप न जाने कहां से आ गए थे। वो पानी में तैर रहे थे। बाज लोगों को सांपों ने डस भी लिया था। कुछ लोग डर और खौफ से भी मरने लगे। सुबह हुई तो जनाजे उठते नजर आए। जो लोग जहाँ बहक हो जाते उन्हें बेसरो समानी के आलम में किले की शुमाली दीवार के साथ दफन कर दिया जाता था। इन हालात में कफन कहाँ से आता? बस लाशों को हाथों में उठाकर फसील के पास ले जाते और गढ़ों में फेंक आते थे, या फिर बारिश में भीगी मिट्टी उन पर डालकर छुपा देते थे। भारतीय हुकूमत को मुसलमानों की इस बप्ता का बखूबी इल्म था, लेकिन वो टस से मस न हुई। राशन का कोई इंतजाम न था। वो तो ये चाहती थी कि दिल्ली के सब मुसलमान एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएं। चुनांचे यही हुआ। खासी तादाद में लोग मर गए, और जो जिंदा रहे उनका हाल मरने वालों से बदतर था।
2 रोज बाद जामिया इस्लामिया के शेख उल जामिया डॉक्टर जाकिर हुसैन खान साहब किले में आए और हम लोगों से भी मिले। मैंने उस दिन पहली मर्तबा उन्हें परेशान देखा, वरना वो बड़े हौसले और हिम्मत वाले आदमी थे। मुझे उनकी आंखों में आंसू भी नजर आए। हमने उन्हें कैंप की अबतर हालत से आगाह किया। उन्होंने हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया, लेकिन बातों बातों में ये भी कह दिया कि हुकूमत बेबस है। एक शख्स पटेल के जज्बा इंतकाम ने यह सब कुछ किया है। उस अरसे में BOAC के जहाज दिल्ली से कराची और कराची से दिल्ली आने जाने लगे। कराची के लोगों को जब अहले किला की हालत तेजार का इल्म हुआ तो उन्होंने इन जहाज़ों को खाने पीने की चीज़ों से भर दिया। उनमें खुमैरी रोटियां, नान, डबल रोटियां, अंडे, कबाब और न जाने क्या कुछ था। ये जहाज इन चीज़ों को लेकर दिल्ली पहुंचते थे। जैसे ही ट्रक किले के अंदर पहुंचते लोग उन पर हमला कर देते और लूट लेते। जिसके जो कुछ हाथ आया ले उड़ा। कई कई दिन के भूखे लोग इस मामले में बाकायदगी का इजहार कैसे कर सकते थे। मेरे हिस्से में एक शामी कबाब आया था जो किसी ने लूट कर मुझे दिया था। पेट तो उससे क्या भरता, अलबत्ता उसका ज़ायका अब तक याद है। एक बात को देखकर मुझे अफसोस हुआ कि लोग लूट के इस माल को बेच भी रहे थे। मेरे कानों में कई बार ये आवाज़ आई, 2 रुपए की डबल रोटी साहब, 2 रुपए की डबल रोटी। मजबूरन लोग खरीद लेते थे। हम लोगों को उनकी इस हरकत पर गुस्सा भी आता था कि मौत सरों पर नाच रही है और ये इस माहौल में भी मुनाफाखोरी पर उतर आए हैं। हालांकि डबल रोटी की कीमत उस जमाने में 2-3 आने थी। मेरा ख्याल गलत नहीं कि ऐसे ही लोगों ने बाद अज़ां पाकिस्तान के पाकीज़ा माहौल को ख़राब किया होगा। गर्ज 5-6 दिनों के अंदर किले में लाखों मुसलमान जमा हो चुके थे। लोगों ने यहाँ अपनी जानें बचा ली थीं और अपनी इज्जतों को महफूज कर दिया था, लेकिन अपने मुस्तकबिल से परेशान थे। अब सिर्फ पाकिस्तान की तरफ स्पेशल ट्रेनों के चलने का इंतज़ार था। फिर बाद अज खराबी बसियार वो मरला आया और महीनों रवां दवा रहा। कुछ गाड़ियाँ बखैरियत पहुँच गईं और कुछ कत्लो गारत का निशाना बनी। बहरहाल पाकिस्तान की मंजिल आखिरकार आन पहुंची। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।